Alright, so let's get started with the problem for this episode, which is this the problem number 17th, that is checking for Armstrong numbers in a range. So, first of all, without moving any further, let me tell you something. If you don't know the meaning of Armstrong numbers, and if you want a little more detail of that, so already मैंने ये जो प्रॉब्लम है मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स स्पेसिफिकली जो ये टॉपिक है मैंने कवर अप करवा दिया है. दैट इज़ इन द फोर्थ एपिसोड ऑफ द सीरीज कोड बिफोर डीएसए. दैट इज़ वी हैव कैलकुलेटेड द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर in this fourth problem, the fourth episode of this code before DSA. So I would urge you guys ki if you want a detailed explanation regarding the Armstrong numbers, and also I would really urge you guys to just go and watch this episode. Okay, I'm going to give you a kind of a quick recap of what is Armstrong numbers and all, so don't worry about that. Okay, without any further ado, let's get started. Now let me give you a quick recap and kind of a quick explanation of what is an Armstrong number. Definitely feel free to skip through this part. Okay, just skip a few seconds, few minutes of the video if you already know this. Okay, simple concept Armstrong numbers ka. Any number, okay, any number in this plan, we are kind of representing that particular number in form of this XYZ. Okay, obviously just ये XYZ समझो. Obviously एक XYZ पूरा एक number है and XYZ are the digits of that number. Okay, now here's the catch. What is the number of digits here? 1 2 3, obviously as you can clearly see. Okay, so number of digits 3 है. Okay, let's say n. ठीक है. So अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनी नंबर, ओके, एनी नंबर जिसके जो डिजिट्स है दैट इज x, y and z. So the numbers digits, okay, raised to the power the number of digit. Okay, and if we do a sum of this complete expression, if we are getting the same number, then that particular number is said to be as an Armstrong number. सर के ऊपर से क्या डोंट वरी, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ मैं. सो लेट्स टेक अ नंबर 153. या आई हैव इंटेंशनली टेकन दिस नंबर बिकॉज होल्ड ऑन अ बिट. ठीक है, सो जस्ट 153, राइट. 153 के आप डिजिट्स देखो क्या है, 1 5 and 3. ओके, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ओवर हियर कि 1 5 लाइक ऑब्वियसली 3 है. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3. तो 1 की पावर 3 ऑब्वियसली 1, 5 की पावर 3 इट्स 125 आई गेस. 5 की पावर 3 इज, यस आई एम राइट, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स. ओके, and 3 की पावर 3 is 27. Now if we add this, okay, 125 plus 1, that is 126 I can say, and 126 plus 27 I can see it is coming as 153. You observe something कि जो हमारा नंबर था, ऑब्वियसली जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा नंबर था 153, उसका हमने क्या किया, उसके हमने इंडिविजुअल डिजिट्स लिए, उसका पावर दिया हमने नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड उनका पूरे एक्सप्रेशन का सम करने से हमें वही डिजिट मिला 153. सो द नंबर्स विच आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मैथमेटिक रूल और पैटर्न आर सेट टू बी एज Armstrong numbers. Okay, I really hope and believe this is clear. ठीक है, so yeah, this was the complete understanding of what an Armstrong number is. अब now I would urge you कि अगर इसका, क्योंकि देखो अभी हम obviously Armstrong number कैलकुलेट करने का भी एक फंक्शन है, कोड लिखने वाले हैं. ठीक है, वेरी सून. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर लाइन बाय लाइन चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कि वो लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि what happened here. So I would really urge you guys कि please just it will be just fraction of minutes. Just go on and watch the episode number 4. You will get to know, you will get to understand everything, every single line of code of solving Armstrong number. Okay, so let's get started with this particular problem, like today's problem, that is the 17th number, in which ठीक है इस Armstrong number से मिलता जुलता ही है कुछ. So let's read it and understand. So checking for Armstrong numbers in a range. Okay, description, as we can see, write a program to find all possible Armstrong numbers within a given range. Okay, तो दिस काइंड ऑफ मेक्स सेंस. ध्यान से सुनो आप. जैसे 1 एक रेंज हमें मतलब मिलेगा, और या फिर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे. दैट इज से फॉर एग्जांपल 1 फ्रॉम 1 to 500. ठीक है, सो विद इन दिस रेंज how many Armstrong numbers are possible and how many Armstrong numbers are there basically. As you can see, yeah, 1 तो होता है, by the way 2 3 4 ये सब 1 जितने भी सिंगल डिजिट होते हैं सारे
kind of Armstrong numbers ही होते हैं. I'm absolutely right. As you can see, yes, all single digit number from 0 to 9 of course आर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स. जो भी वो रेंज हमें मिलेगा 1 to 500 या x to y, हमें उसके बीच में जितना भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पॉसिबल है वो हमें प्रिंट आउट करना है. लाइक इस रेंज में 153, 370, 371. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोड बिट ऑफ पार्ट. ऑलराइट, and let's try to code this, and on the way we'll understand everything. Okay, so alright, now if you'll observe, so we want a range. Okay, so आप वो अपने हिसाब से like आप hard code भी कर सकते हैं यहाँ पर values, ठीक है, then you can go for it. But okay, let's take the range as well input from the user. So in any range we have two things, the starting point and the ending point. अब range कुछ भी दे सकता है, वो बड़ा digit भी दे सकता है एक range. Like say for example 10,000 to 1 lakh, this could be possible. So let's give the data type as long. Feel free to give anything you want, it's up to you, it's your code. But in this code, yeah, I'll be giving the data type as long. We are basically stating starting point as sp and ending point as ep. Okay, now yeah, just simple, just see out something that, okay, enter now cin. Okay, so the sp, and then after it the ending point. Okay, maybe let's really quickly test this out कि इतना proper print हो रहा है कि नहीं. Okay, let me run this code, and yeah, simple. Yeah, so 13 and 15. Yeah, अच्छा, the important thing is just give a escape sequence character over here for just a new line break. And okay, ठीक है. Okay, so yeah, we have our range here, but this is very important to understand that अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, like अगर if you know, obviously this is normal mathematical thinking that अब मैं अगर आपसे कहा कि let's enter some range starting from 50 and going to 1, like okay, उसने तो accept कर लिया, वो तो print कर लिया, लेकिन don't you feel this is not good? This seems kind of weird because भाई मतलब यहाँ हम देखा जाए तो हम okay, you can optimize and you can write your code in that way. Like अगर आप उल्टे रेंज भी अगर आप चाहो लिखना, उसे आप सीधा कर लो एंड यू कैलकुलेट, और मे बी यू कैन कैलकुलेट द रिवर्स एज वेल. बट द थिंग इज़ कि हमें हमारा कोड को इस हिसाब से बनाना है कि वी हैव टू बेसिकली स्टॉप द यूज़र कि यार तुमने एक लाइक काइंड ऑफ अ वियर्ड रेंज दे दिया है. मीन्स योर रेंज basically the mathematical logic should be basically here that जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बड़ा या इक्वल, मतलब अगर मैं आपसे बोला कि 1 to 1, क्या ये कोई रेंज पॉसिबल भी है क्या? सी 1 to 1 मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार, तो रेंज ऑब्वियसली यार 1 से 1 का रेंज क्या होता है? सो ना ही स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट के इक्वल होना चाहिए, ना ही वो उससे बड़ा होना चाहिए. This is the main logic as a kind of a little condition that we have to apply over here कि the starting point, that is जो starting point रहेगा वो obviously छोटा रहेगा इन कंपेयर टू द एंडिंग पॉइंट, बिकॉज हम एक छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू तक के रेंज में ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू राइट बेसिकली ग्रेटर दैन इक्वल टू द एंडिंग पॉइंट. सो लाइक बेसिकली वी हैव टू स्टॉप द यूजर राइट देयर, ठीक है. देख जस्ट सिंपल हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे दैट इज like basically invalid range or something like that. Yeah, invalid range. Okay, so yeah, that's it. And yeah, here's the most important point कि क्या करना होता है कि एक बार में भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि इतना में क्या हो रहा है, ठीक है. लेट्स जस्ट टेस्ट दिस आउट एंड मे बी ओके, देखो मैं सही रेंज दिया, अगर मैं सही रेंज दिया सो इट इज़, इफ़ आई गिव अ वैलिड रेंज सो या इट विल टेक इट अप, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट इफ़ आई मेस समथिंग, ओके, इफ़ आई गिव सम रॉन्ग रेंज, तो आप देखो या ये कंडीशन तो चला, एज यू कैन क्लियरली सी कि हाँ इनवैलिड रेंज आया, लेकिन हियर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस कोड दैट इस पॉइंट के बाद वो आगे स्टेटमेंट भी मतलब आगे प्रोसीड कर दे रहा है हमारा प्रोग्राम, दैट यू एज यू कैन सी कि यहाँ पर इस पॉइंट के बाद क्योंकि रेंज गलत दिया है यूज़र ने, सो इस पॉइंट के बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाना चाहिए, दैट इज एंड हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो आगे बढ़ गया एंड ये रेंज भी प्रिंट कर दिया. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज सिंपल, जस्ट वी विल राइट रिटर्न, लाइक वी विल राइट बेसिकली रिटर्न -1, ठीक है. वाई दिस? सो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिटर्न 0, अगर मैं आपसे पूछूँ रिटर्न 0 हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं इन एवरी C++ कोड एट द एंड ऑफ इन द मेन फंक्शन of C++ code, at the end of it, why we write this return 0? This 0 is representing here if you kind of did backend a little bit, so you know the concept of status code and all. तो जो 200 status code, या फिर आपको अगर backend नहीं भी करा है आपने, so you know 404 error, 404 error not found, 401 या 402 unauthorized and all, 501, and all these are some kind of status code which is being stated that कि ये
जो स्टेटस कोड है इसका जो मतलब है वो है कि समथिंग वेंट दिस या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर समथिंग वेंट सक्सेसफुल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इन दिस सी प्लस प्लस काइंड ऑफ थिंग हम जो रिटर्न जीरो लास्ट में लिखते हैं, ओके सो या ऑब्वियसली यू कैन राइट एनी वैल्यू हो क्योंकि अच्छा एक और इसका जो मेन इसका रीज़न भी ये है कि यू नो दैट ऑब्वियसली जो मेन फंक्शन का जो हम डेटा टाइप इनिशियलाइज कर रहे हैं दैट इज इंटीजर डेटा टाइप, सो वी नीड टू ऑब्वियसली like return something, right? Return some integer value. So we can return any integer value, but zero एक convention set हो गया है that okay this zero is representing that the program successfully ran, okay the program successfully executed. But अगर हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट में मतलब इस किसी भी पॉइंट में मतलब रोक के okay, so I guess this is a very nice blooper of this video. लाइट चली गई है and I have to wait. Alright, welcome back guys. Let's continue. So yeah, what I was saying is कि return -1 यहाँ पर हमें करना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि इसी पॉइंट में अगर मतलब ऑब्वियसली यूज़र ने एक इनवैलिड रेंज दिया होगा, सो इसी पॉइंट में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. इस इफ़ ब्लॉक के अंदर इस रिटर्न -1 को लिखने का लॉजिक ये है कि जैसे ये कंडीशन मतलब ट्रू हो गया, लाइक ऑब्वियसली यूज़र ने इनवैलिड रेंज दिया है, सो इसी पॉइंट पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट. सो इफ़ आई लाइक बेसिकली रन द प्रोग्राम नाउ, सो लाइक यू कैन क्लियरली सी कि हमने ओके अगर हम सही रेंज देंगे, ऑफकोर्स अगर हम कुछ सही रेंज देंगे सो ओके इट इज़ कूल. बट इफ़ वी गिव सम यू नो लाइक या मतलब ऑब्वियसली ऐसे गलत रेंज हमने दिया, सो इट विल से इनवैलिड रेंज एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप राइट हेयर ओनली. इसके आगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद ओके हमारे पास ऑब्वियसली रेंज तो आ गया, बट ओके नाउ द थिंग इज़ की रेंज तो आ गया, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट उस रेंज के बीच में, से फॉर एग्जाम्पल 1 to 500 रेंज के बीच में हाउ मेनी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं. सो बिफोर दैट लाइक ऑब्वियसली इसके ये मेन लॉजिक मतलब लिखने से पहले तो हम एक फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं. ओके ऑब्वियसली ओके इफ़ यू आर वंडरिंग कि व्हाट आई एम राइटिंग दिस बूल एंड ऑल, सो okay basically the function we are writing is check Armstrong number, basically check Armstrong number, which is obviously accepting obviously a number. अब ये क्या करता है? So basically this bool is obviously the boolean. Okay, this function will, the return type of this function is a boolean type, that is true and false में हम रिटर्न करेंगे वैल्यू. क्यों? बेसिकली क्या हो रहा है, इस फंक्शन में हम एक नंबर पास करेंगे एंड बोलेंगे कि भाई चेक कर कि ये इज इट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. ठीक है, एंड दैट्स इट. बस वो क्या करेगा, अगर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सो वो बोलेगा ये ट्रू, इफ़ नॉट सो इट विल से फॉल्स, एंड एवरीथिंग जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ हैंडल करेंगे. एंड देन in that loop basically we'll run a loop in that range and we'll figure it out via checking the Armstrong number. इस पर्टिकुलर फंक्शन से हम चेक करेंगे कि whether that particular number in the range is Armstrong number or not, and that's it. Armstrong number का कोड मैं यहाँ पर Armstrong number चेक करने का यहाँ पर मैं कोड कर लेता हूँ. Then I'll really quickly explain you guys. By the way, मैंने आपको पहले कहा है कि एपिसोड नंबर 4 देखिए, उसमें इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है द कोड ऑफ Armstrong नंबर. ओके सो हमने सबसे पहले टेम्प वेरिएबल में बेसिकली एक ये जो नंबर है हमारा, जो मेन जो नंबर रहेगा वो हमने स्टोर कर लिया. काइंड ऑफ वी हैव मेड अ कॉपी ऑफ दैट. ओके कि हम वो हम बेसिकली हम जो भी मैनिपुलेशन और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हो आप, वो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में हो, जो रियल नंबर हो वो सेव रहे. ठीक है, देन हमने सबसे पहला जो टास्क किया है वो नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट किया है. सो उसके लिए ऑब्वियसली हमने ये लूप रन किया है. जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम ये रन करते रहेंगे. एंड हम जैसे ही लूप एंटर हुआ, जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ, हमने जो नंबर ऑफ डिजिट्स ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये हम इसके हम काउंटर वैल्यू एक वैल्यू से हम इंक्रीमेंट कर देंगे. एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेप से हम जो से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी रहेगा, अगर एक्स वाई जी अगर रहा होगा डिजिट, सो ये पर्टिकुलर स्टेप से हर बार लास्ट वाला डिजिट माइनस होते रहेगा, मतलब हटते रहेगा. सो जो सेकंड टाइम द लूप विल रन, ये फिर वाई हट जाएगा, जो वाई है वो हट जाएगा, फिर लास्ट में ये हट जाएगा तो 0 बचेगा एंड एट दैट मोमेंट लूप एंड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया. तो अब देखो ऑब्वियसली इस पॉइंट में हमें इस लूप के बाद तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स मिल गया, लेकिन द थिंग इज जो टेम्प्रेरी जो यहाँ पर टेम्प वेरिएबल था, इस पॉइंट के बाद वो 0 हो गया. तो अब 0 पे तो हम चेक नहीं करेंगे, तो इसलिए वापस हमने टेम्प वेरिएबल को उस नंबर से इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद जब वापस टेम्प वाले वेरिएबल में हमारा नंबर वापस इनिशियलाइज हो गया, देन अगेन हमने एक ऑब्वियसली यहाँ पर देन हमारा जो सेकंड हमारा पॉइंट था वो हम फाइनली चेक करेंगे कि इज इट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. तो उसके लिए क्या है, हम या देन हम जो एक्सप्रेशन में सम करते हैं, इन टोटल सम करते हैं,
तो हम सिंपल एक सम नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए विद ऑब्वियसली विद जीरो, एंड हम वापस वो लूप रन किए। इस बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर से हम लास्ट डिजिट ले रहे हैं, एंड मतलब बेसिकली हर डिजिट ले रहे हैं, एंड यूजिंग दिस पाव फंक्शन बेसिकली we are basically importing it from this CMath library, and this obviously power function is obviously calculating the number of calculating the obviously the power, okay, so digit raised to the power the number of digits, okay, and उसे हम sum variable जो है जो जीरो जो sum variable जो है every iteration हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ओके, एंड देन ओके द सेम स्टेप, जिससे पूरा हम जितना तक वो टेम्प वेरिएबल जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम इस पर्टिकुलर लूप को रन करेंगे, एंड देन फाइनली हमारे पास सम की भी वैल्यू आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल 153 आ गया। अब नाउ देन वी आर चेकिंग कि भाई वो जो सम की वैल्यू आए दैट इज से फॉर एग्जांपल 153 एंड नंबर 153 अगर इक्वल हुआ देन या वी आर गुड टू गो, रिटर्न ट्रू, दैट इज या लाइक ऑब्वियसली द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड इफ नॉट देन इट इज देन हमने फॉल्स कर दिया। सो नाउ द थिंग इज ये तो हमने चेक कर लिया है, ओके, द चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फंक्शन इज डन। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट ओवर हियर। विल बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल रन अ लूप ओवर हियर, ठीक है। तो लूप ऑब्वियसली लूप, अब आप देखो लूप स्टार्ट होगा, लूप में से फॉर एग्जांपल आई जो है, तो जो मतलब आई की वैल्यू है हम स्टार्ट करते लूप। ऑब्वियसली हम याद होगा हमारे पास हमने यूज़र से एक रेंज इनपुट करवाया था, ठीक है। सो हम लूप जो है स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लूप हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो ऑब्वियसली अप टू एग्जैक्टली बोथ द वैल्यूज़ आर इंक्लूसिव, ठीक है। सो वो आई की जो वैल्यू है एंडिंग पॉइंट तक जाएगी, या वी आर सिंपली इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू एंड दैट्स इट। तो अब बेसिकली आपको विजुअलाइज करना है, होगा क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट से फॉर एग्जांपल 200 स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंडिंग पॉइंट इज़ 500, सो 200 से 500 तक पूरा ये लूप रन होगा, एंड एवरी नंबर 201, 2, 203, 204 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू 500। हर बार हम चेक करेंगे कि चेक यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमने जो फंक्शन बनाया था, चेक कि ये जो आई है, ये जो आई वाला जो उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में जो भी वो नंबर रहेगा उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में, इज दैट नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। सो इफ दिस इज इफ इट इज इफ तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो ऑब्वियसली अगर ट्रू रिटर्न किया है तो हम अभी इस पॉइंट में बस अब सिंपल हम एक वेक्टर इनिशियलाइज कर देते हैं। बेसिकली क्या है यहाँ पर हम पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली द वेक्टर। बेसिकली हम काइंड ऑफ मे बी एक पॉसिबल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब नाम कुछ भी रखो आप लॉन्ग नाम से, बेसिकली लॉन्ग इंटीजर टाइप का मे बी पॉसिबल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स नाम, लाइक सिंपल, वो तो फील फ्री टू गिव लाइक एनी नेम यू वांट, मैंने तो ये दे दिया। सो ऑब्वियसली पॉसिबल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स नाम का इस वेक्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, दिस विल बी एन एम्प्टी वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। इस पर्टिकुलर एम्प्टी वेक्टर में अब हर वो नंबर जो कि पॉसिबल है, लाइक इट इज़ एलिजिबल फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो हर वो आई की वैल्यू हम इस पर्टिकुलर पॉसिबल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स वेक्टर में हम इसे पुश कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू इज लाइक सिंपल, या ऑब्वियसली पॉसिबल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर dot, yeah, the function we'll use is pushback, okay, to push into the vector, and pushback में I, ठीक है, and as you can see, yeah, चले गया। और हाँ, अगर obviously वो हुआ, अगर वो like आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ तभी हमें इसमें पुश करना, नहीं तो या just continue, we are good to go, and that's it guys। We, like honestly speaking, we have all the possible Armstrong numbers within that range, within this particular range, okay, within this particular range in this possible Armstrong numbers vector. Now what? Simple is like we'll run a loop in this vector, and simple हम print कर देंगे, okay, all the possible values. So yeah, let's really quickly run a loop. Select simple maybe maybe long, okay, obviously long data type रहेगा, x just a traversing loop, simple possible Armstrong number वाले वेरिएबल में, एंड सिंपल वी विल सी आउट एज मे भी थोड़ा अगर अच्छे से आपको लिखना है अगर, तो या जस्ट गिव इट एज, यहाँ पर से आप ऐसे लिखो कि द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन द रेंज इज़, मतलब ऐसा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे, या ऐसे करने के बाद इसके बाद जस्ट यहाँ पर ये सब एक्स प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है, विथ स्पेस, एंड या वैसे बात है या फिर इस पॉइंट के बाद या जस्ट प्रिंट या द एंडिंग स्पेस ओवर हियर, एंड दैट्स इट, आई गेस, सो दैट्स इट। एंड यहाँ पर अ न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके सो गाइस, या वी आर गुड टू गो, आई होप सो। वो तो देखते अगर कुछ लाइक इफ समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, सो मे बी हम रन करके हम इसे डीबग कर लेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। सो या लेट्स चेक, ओके, लेट्स चेक कि एवरीथिंग इज
working correct or not. So okay, we have our range now. So yeah, like definitely we can now enter our range. So okay, वो जो हमारा problem है हमारा, if you remember, so the range was you know 1 to 500. So yeah, उसमें ये numbers आए थे. Let's try to give this range, okay, 1 to 500 and let's see कि आता है कि नहीं. So yeah, by the way थोड़ा सा यहाँ पर space कर दो. Let me run the program again, and 1 to 500 में yeah, obviously the range is 1 to 500. Obviously मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले सर्च करके बताया था कि every single digit number from 0 to 9, obviously all the single digit number they are Armstrong numbers, ठीक है. So 1 to 9 है, okay, no problem. But yeah, हमें major focus करना है in this. So 153, 370, 371, 407, 153, 370, 371, 407, and yeah, here we go guys. Our code, our program is absolutely correct. Okay, मैं 100 से start करता हूँ and like कुछ maybe yeah 1 लाख तक जाता हूँ, तो आप clearly देख सकते हो, like yeah, clearly you can see right कि इस particular 100 से 1 लाख के range में you can see all like these are all the possible Armstrong numbers. Okay, so honestly speaking this is so much crazy, ठीक है, क्योंकि like literally ये बहुत अच्छा you know this was a very good question, ठीक है. This was a question kind of कि एक simple implementation है, that is like एक मतलब question के मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू कैन से कि 2 पार्ट्स हैं, मतलब ये खुद में ही एक सिंगल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की तरह है कि फर्स्ट तो ये पूरा लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का आपका पूरा ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका देखेगा, एंड आपका जो लूप्स का अंडरस्टैंडिंग है एंड बेसिकली आप इसे कैसे आप हैंडल कर रहे हो वो अंडरस्टैंडिंग आपका देखेगा. एंड या बोथ द क्वेश्चंस कंबाइंड, दिस इज अ कंप्लीट होल क्वेश्चन, दैट इज़ आपको एक रेंज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करना है. सो या दिस इज इट गाइज, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडेज प्रॉब्लम, ठीक है.